यहाँ पे मी एंड डॉक्टर फातिमा जो है हम मिल के आपकी डिस्क्रिप्शन सुनेंगे एंड देन वी विल correct you if you have any mistakes. Describe the picture. सर जो लेफ्ट पिक्चर है सर, on posterior segment examination of the patient's right eye, the optic disc is appearing normal, pink with the healthy neuroretinal rim. The cup to disc ratio is 0.3 and there इसमें सर इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सर it seems like there are some few suspicious vessels over the optic disc. Okay. आगे जो है सर the vessels are dilated. The vessels seem tortuous and dilated, and there seem to be a new vessel, suspicious vessel along the inferotemporal arcade, and hemorrhages, scattered hemorrhages along the inferotemporal quadrant, and few cotton wool spots. And how many cotton wool spots? Sir, इसमें तो it seems like almost three or four cotton wool spots. Okay, good. Sir, there is it seems like there is macular edema. The foveal reflex is absent, and there is a retinal thickening. It seems like, लेकिन चूंकि सर उस सराउंडिंग में सर कोई एक्सुडेट्स नजर नहीं आ रहे, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट सर. इसमें सर प्रॉब्लम बहुत होती है सर. Sir, on posterior segment examination of the left eye, there is the optic disc appears to be normal. The optic disc appears to be normal. The neuroretinal rim appears to be healthy. The cup to disc ratio is about 0.3 to 0.4. And इसमें भी सर ये थोड़ा सा zoom, इस पे भी सर कोई suspicious vessel, it seems like there are no suspicious vessels over the disc, but the superior and inferotemporal vascular arcades seem normal. Inferotemporal पे सर जो है the aspect seems a little bit pale, inferotemporal aspect of the retina, और जो है there is macular edema. Okay, can you appreciate these red dots? I'm Yes, pointing sir. on it. Sir, what are these? Yes, sir. Sir, it seems that they are microaneurysms, sir. Okay, and there is one also here. Yes, sir. Yes. So it seems like in this patient there are almost a total of 3 microaneurysms. Okay, 3 to 4 microaneurysms. And और सर और तो सर इसमें कोई फाइंडिंग मुझे नजर नहीं आ रही है सर. ये मैकुलर एडिमा में सर बहुत प्रॉब्लम होता है सर. अच्छा, देखिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो फंडस फोटोग्राफ है दैट इज अ 2 डायमेंशनल पिक्चर. उसके अंदर मैकुलर एडिमा रिकमेंड करना इज अ बिट डिफिकल्ट, बिकॉज एडिमा जो है जाहिर है रेज कोई एलिवेशन होगी, आपको 3D में पता नजर आएगी, तो फिर यू कैन सेफली कमेंट. बट इसमें अगर या तो बहुत ज्यादा ग्रॉस या डिफ्यूज मैकुलर एडिमा है तो वो तो एप्रिशिएट हो जाएगा. But if there is minimal macular edema or there is a focal edema, then it is difficult to appreciate on this fundus photograph. So you can say, sir, there appears to be, or I want to confirm it on the investigations and the clinical examination. So now Dr. Fatima will carry on. Assalamualaikum. मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है and currently I'm with my FCK ophthalmology and my fellowship of Royal College of Edinburgh and fellowship of International Council of Ophthalmology, and I wish you all best of luck. So there are few tips that while describing the fundus photos or while you are doing the fundus examination of the short case, you have a very short period of time.
So all of you should concentrate on the things that you have to speak. First of all, आप अपनी डिस्क की डिस्क्रिप्शन जो है वो पहले भी मैंने सेशन में बताया था कि देयर आर 8 to 9 पॉइंट्स जो आप अपनी डिस्क की डिस्क्रिप्शन को पक्का कर लें, जैसे कि मुझे डॉक्टर साहब ने भी बताना शुरू किया कि द डिस्क इज नॉर्मल और देयर आर सस्पिशियस लेसन्स और ये चीजें अगर आप डिस्क की डिस्क्रिप्शन इस तरह बताना शुरू करें कि द कलर ऑफ द डिस्क, द साइज ऑफ द डिस्क, the vertical CD ratio of the disc, the neuroretinal rim of the disc, the peripheral area of the disc. तो इसमें इतने ज्यादा पैरामीटर जो है वो खुद ब खुद कवर हो जाते हैं. तो आपने नहीं बताया, सो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी तो मैं इसको यही बताऊंगी कि the color of the disc is pinkish yellow, the margins of the disc is dark clear, there is no peripheral atrophy, the vertical CD ratio seems to be 0.4 to 0.5 and जो इसकी अब इसकी मॉर्फोलॉजी के मुताबिक इस पे मुझे कोई सस्पिशियस लेसन नजर नहीं आ रही. सो जहां मैंने टेस्ट को खत्म किया, नाउ वी विल कम टू द वेसल्स. सो देयर इज द सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी एंड इंफीरियर सुपीरियर एंड इंफीरियर टेम्पोरल आर्टरी. जब आप इसमें अगर आप पेशेंट देखते हो, डायबिटीज का पेशेंट देखते हो, 3-4 चीजें आप देखोगे. आपका वेस्कुलर कैलिबर कैसा है, आप वीनस डायलेशन को नहीं देखते, व्हिच आर द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अर्ली जो हम वीनस ब्लीडिंग और उन चीजों के पीछे पड़ जाते हैं. उससे पहले क्या हम सब ये देखते हैं कि पेशेंट का वीनस डायलेटेशन है, वीनस कैलिबर ज्यादा हुआ है, जो कि हाइपोक्सिया का वेरी अर्ली साइन है. हमने ये देखा नहीं है. सो सेकंड चीज व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इसमें मुझे एट्रोवीनस स्निपिंग नजर आ रही है? आई विल गो फॉर इट. फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं we will just give me a minute. There are a lot of complaints that most of the people cannot hear. Let me check on my side. Can you hear me now? Please tell in the chat box that you guys can hear. The things are okay from my side. You guys can hear now? Madam, we can hear you. Is my voice clear? Please tell me in the description box. Dr. Mateen, Dr. Anam. Okay, Dr. so I Amna. think that we are good to go. We can start. Okay. I will repeat it for all of you. Then you can guys can do practice that whenever you are doing a fundus examination, especially for your short case, which is a very brief period and panic period of the time. First of all, concentrate on 3 things. You have to describe the fundus pictures and किसी भी चीज की hypertensive, diabetes, वो जो आपका case आएगा. There are 3 components: the disc, the vascular arcades, and the macular area. Until unless is a retinal detachment case, वो उस पे आपको वो उसके साथ दिखाएंगे इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप के साथ, अदरवाइज आप 90D पे ही देखेंगे. और ये 3 कंपोनेंट्स है जिन पे आप एम्फसाइज करोगे. मैं प्लीज आप लोगों को डिस्क के लैंडमार्क्स बता रही हूँ. प्लीज मेक इट अ हैबिट. अगर आप इन लैंडमार्क्स को फॉलो करेंगे, आप लोग चीजों को अचीव कर लेंगे और सारी जो है फाइंडिंग्स को पिक कर लेंगे. अगर आप इन लैंडमार्क्स को रैंडमली लेके चलेंगे, जो मैंने अपनी तैयारी में अपने सीनियर से और सबसे ये सीखा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% यू पिक, क्योंकि 100% फाइंडिंग्स कोई भी पिक नहीं करता एग्जाम के अंदर. अब आप एक अपना रूटीन बना लो अंदर से बाहर की तरफ डिस्क की. जैसे वर्टिकल सीडी रेशियो आपने डिस्क की बता दी है, कितनी वर्टिकल सीडी रेशियो है, उसका आप न्यूरोरेटिनल रिम बता दो. न्यूरोरेटिनल रिम में अगर थिनिंग आपको किसी क्वाड्रेंट में बहुत ज्यादा लग रही है, आप इजीली बता सकते हैं. न्यूरोरेटिनल रिम हेल्दी है, पिंकिश है. डिस्क का कलर बता दो. पेरिफेरल एरिया में एट्रोफी है, एट्रोफी किस तरह की है, क्रिसेंटिक है, साथ के आपको मायोपिक फंडस मिल रही है या नहीं मिल रही है. आपने डिस्क का कलर बता दिया, शेप बता दिया, साइज बता दिया, पेरिफेरल एरिया बता दिया, सस्पिशियस वेसल्स बता दी, वर्टिकल सीडी रेशियो बता दी, कपिंग बता दी, कोई आपको उसमें लैमिनर डॉट साइन पॉजिटिव मिल रहा है. इस तरह मोस्टली आप इसकी चीजों को आपने कवर कर दिया. उसके बाद चलते हैं वेसल्स की तरफ.
अब ईच एंड एवरी पाकिस्तानी पेशेंट जो पार्ट 2 वाले एग्जाम्स में रखेंगे डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन फ्री में मिलेगी आपको वहाँ पे। अगर आपने एट्रियोवीनस निपिंग मिस वहां पे कर दी है तो आपने एग्जामिनर को खुद कहा है कि मुझे चेक कर दो आप। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे चीज देखूंगी वो मैं देखूंगी कि वेन का कैलिबर क्या है और एट्रियोवीनस निपिंग प्रेजेंट है कि नहीं, जो कि इस डायग्राम में मैं इतनी एप्रिशिएट, मुझे सुपीरियर वेस्कुलर आर्टरी में मुझे थोड़ी सी एट्रियोवीनस निपिंग लग रही है, बट मैं इसको कमेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये अभी ये 2D डायग्राम है। ये वेस्कुलर आर्केड से कमेंट करने के बाद अगर यहाँ पे मुझे कोई वेस्कुलर आर्केड के ऊपर कोई फाइब्रोवेस्कुलर फ्रॉन मिल रहा है, कोई हेमरेज मिल रहा है, कॉटन वुड स्पॉट मिल रहा है, और एक और बात, अगर कॉटन वुड स्पॉट मिल रहा है यू हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ द कॉटन वुड स्पॉट, द लोकेशन ऑफ द कॉटन वुड स्पॉट। कॉटन वुड स्पॉट मिलने का मतलब ये है कि आपका पेशेंट ऑन गोइंग इस्कीमिया को सफर कर रहा है एंड यू हैव टू relieve that ischemia, but by doing pan-retinal photocoagulation या जो भी आपकी as a ophthalmologist आपकी strategy है। इस वक्त मुझे इसकी vascular artery में ये वाली ऊपर में फाइंडिंग नहीं मिली। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके मैकुलर एरिया के ऊपर, ठीक है। अब आप इसके मैकुलर एरिया के ऊपर जब आप आएंगे तो आप ये डायग्राम देखते हुए तो नहीं ना बता सकते हैं कि भी इसमें मैकुलर एडिमा है या नहीं है, ठीक है। मैं इसको ये कहूंगी कि देयर इज लॉस ऑफ द फोवेल कॉन्टूर, यानी कि वो जो शीन होती है या वो जो शाइन होती है वो मुझे नहीं मिल रही है, ठीक है। एंड देयर आर डिफ्यूज हेमरेजेस अलोंग विद cotton wool spots which are 4 in number, ठीक है, and they are involving the inferior quadrant of the macula and slightly superior to the inferior vascular arcade. So अगर आप एनाटॉमी को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं, क्वाड्रेंट को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं, मैंने 4 कॉटन वुल स्पॉट्स बता दिए, आप लोगों ने इसकी मॉर्फोलॉजी भी बतानी है, क्या ये स्कैटर्ड हेमरेजेस हैं या ये थोड़े से कॉन्फ्लुएंट एक क्वाड्रेंट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपने इनको भी आइडेंटिफाई करना है। स्कैटर्ड हेमरेजेस एक ये, these are not scattered hemorrhages, this is a bunch of hemorrhages which are mostly confluent and involving a quadrant। तो आपने इस तरह करके इसकी फाइंडिंग्स बतानी है। अब आप में से जो भी करना चाहता है, जो साथ वाली पिक्चर को डिस्क्राइब करना चाहता है वो करता जाए, या इसी पिक्चर को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो अब मैं फिर उसको अनम्यूट कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, ये क्वेश्चन है, ये वेसल्स में आपने 3 मेन चीजें बताई थी, वो एक वेन का कैलिबर है, एक एवी निपिंग है, और तीसरा क्या है मैडम? देखिए एट्रियोवीनस निपिंग आपने देख ली, आपने हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी देख ली, आपको कहीं पे कॉपर वायरिंग तो नहीं मिल रही, आपको क्या आर्टीरियोलर एटेन्युएशन जनरलाइज्ड मिल रही है, क्या आपको जो है वो ब्लीडिंग मिल रही है, या कहीं आपको वेनस डायलिटेशन मिल रही है। देखिए ये तो फिर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू सी, लेकिन ये 3-4 चीजें जो आपने लाजमी देखनी है हर पेशेंट के अंदर। ओल्ड एज पेशेंट आएंगे आपके एग्जाम में मोस्टली 50 से 70 वाले, तो उनमें ये सारी फाइंडिंग्स प्रेजेंट होंगी, सो आपने इनको लाजमी देखना है। एंड आई नो अ पर्सन जिनका लॉन्ग केस फेल हुआ था इस वजह से, ही प्रेजेंटेड डायबिटीज सो वेल लेकिन उन्होंने हाइपरटेंशन को मिस कर दिया था। अच्छा, आप में से प्लीज वो डिस्क्राइब करेगा इसको? The left eye now. The left eye now, because I have well described the right one. Yes, ma'am, I can describe this. Okay, Dr. Ahmed, please go ahead. This is color fundus photograph of the left eye showing disc, vessels, and macula. The vertical cup to disc ratio is 0.3 with healthy neuroretinal limb, and these margins are regular. There is no peripapillary atrophy. The vessels originating from the disc are of normal caliber. There is there is a white and yellowish white opaque retina along the supratemporal and infratemporal arcade. The macular reflex is dull, and there is grayish appearance of macula. There are microaneurysms along the posterior pole and along the supratemporal quadrant. The periphery looks normal. There are no scar marks in the periphery. अच्छा ठीक है, इसके वेलकम, आपने ये देख लिया इस पेशेंट की फंडस को क्यों कर लिया। नाउ व्हाट यू वांट टू डू, आपने फंडस का एग्जामिनेशन तो कर लिया, इसके बाद आप क्या सिस्टम के यूज करके कुछ और देखना चाहते हैं? जी मैम, I want to do anterior segment examination, fellow eye examination, and systemic examination.
intraocular pressure and gonioscopy. अच्छा, आप मुझे इंटीरियर सेगमेंट के एग्जाम क्यों करना चाहते हैं इसके अंदर? Yes, ma'am. I want to see neovascularization on the iris, and I want to see corneal hypoesthesia, corneal sensitivity as well. Dr. Ahmed, based on only the left eye, and clear intraocular pressure. if you are presented with only this left eye, ignore the right eye, only the left eye, still you want to do the gonioscopy and the IOP and look for the anterior for the neovascularization? Based on only the left eye. I can't comment without seeing the other eye. I am telling after seeing both eyes. Both eyes. Good. Okay. What are the your differential diagnosis? Let's say that you have only seen this left fundus. Only seeing the left fundus is this is diabetic retinopathy, diabetic retinopathy with hypertensive retinopathy and radiation retinopathy, ocular ischemic syndrome. तो end में रख सकते हैं. Why radiation retinopathy? Sir, I want to take complete history. After that, I can say that. Please justify me. Yourself. Please justify me why you have included radiation retinopathy in the differentials. Because there are microaneurysms as well, and macular reflex is dull. Are there any cortical spots or cortical spots like lesions or any posterior retinopathy or posterior like lesions? In right eye there are cortical spots, but in left eye there is no cortical. We are talking only on the left eye now. Right, sir. You have to give differentials for the left eye only. सर इसमें सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लुजन भी मैं रखूंगा डिफरेंशियल में, क्योंकि मुझे येलोविश ओपेक रेटिना मिल रहा है सुपीरियर इंफीरियर आर्केड में. Supro inferior arcade. You mean to say here? Yes sir, सुपीरियर आर्केड और इंफीरियर आर्केड के लॉन्ग सर येलोविश ओपेक रेटिना मुझे मिल रहा है, इसलिए सर मैंने वो CRAO भी रखा है डिफरेंशियल. बिल्कुल ठीक है. Okay, good.